This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. In mathematics, while doing mathematical calculations, so many times at so many occasions, we have to decide perfect square numbers. And if they are perfect square numbers, then what should be its square root? So therefore, in this lecture, we will see the techniques to find square root of perfect square numbers. So what is a perfect square number? Let us suppose 25. 25 can be written as square of 5. So it is a perfect number or perfect square number, because it is a perfect square of 5. 36 is a perfect square, but if I write 29, it is not a square of any number, and therefore any number means any integer, therefore it is non-perfect number. So what is your understanding about perfect number and non-perfect number? So any number who can be generated by taking square of any integer is called as a perfect square number. Now, we will introduce this rule that is called as a digital root to check the perfectness of the numbers. So what is digital root? Suppose I am writing 3496. This is the 4-digit number, and I wish to find its digital root. So its a digital root means add all the digits. You make the addition. 3 plus 4 7 plus 9 16, 16 plus 6 is 22. Now again this is a 2-digit number. So again add these digits. So 2 plus 2, that is 4. Now finally we got single digit number. And this single digit number is called as a digital root of this original number. How it will help to decide the perfect square number and how it will help to find the square root, we will see. So first of all, instant clue for non-perfect square numbers. So we know that square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, and so on. So using these observations, if any number, and if we are observing 2, 3, 7, 8, these 4 numbers, or out of these 4 numbers at unit place, then instantly we can reject that number is non-perfect number. For example, if I am writing 3297, its unit place is 7, therefore it is not a perfect square number. Another is 1538, its unit place is 8, therefore instantly you can say that it is a not perfect square number. 7, 8, 5, 8, 9, 3, 4, 2. So its unit place is 2, whatever big number, but this is not perfect square number. So keep remember these 4 numbers, 4 digits, 2, 3, 7 and 8. And if you strike these any number out of these 4 at unit place of any big number, then you can instantly reject that number for non-perfect square number. Okay. Now we'll see, if we got a number whose unit place is 1, then how we can check whether it is perfect square or not.
For this, our observation are the square of 9 is 81, square of 11 is 121. So see, at the unit place it is 1, but at the 10th place I am getting even numbers. So when you are getting 1 at unit place of any number, then you check its 10th place, and its 10th place must be even number. 10th place must be even number. If you are not getting even number at the 10th place, then you can reject that number should not be a perfect square number. Second criteria is digital root. What is this criteria for digital root? Once this condition satisfy, you go for the second condition, that is a digital root. And the digital root means you add all the digits till you get a single digit number, and that root must be 1, 4, 7, 9. Keep remember these 4 numbers. If you are getting digital root as a 1, 4, 7, 9 or any number out of these 4, then this second condition is also satisfied. And third I am giving you, that is the place. Where exactly that perfect square number and its square root located. So we will see, or we will verify this by using some numbers. So I am giving you 5, 3, 5. Whether it is a perfect square number. So okay, 5 and this is 1. Okay, this is a perfect square number. At the unit place it is 1. What we need at the 10th place? Any even number. But it is not even, therefore it is not a perfect square number. Now we will see 4, 4, 5. So 4, 4, not 4, 4, it is 4, 4, 1. So at the unit place it is 1, but at the 10th place it is 4, and 4 is even number. So first condition satisfied. Now we'll go for second condition, that is a digital root, that is 4 plus 4 plus 1, and its answer is 9. And we need digital root from 1, 4, 7, 9, and it's a 9. Therefore, it satisfies second condition also it satisfied. Now we go to third condition, that is a place. Now what is mean by place? Place means your number is 441. You remove these last 2 digits and put 10 instead of these 2 digits. Take the square root of the remaining digits, that is a 4, and its square root is 2. Therefore you can decide that the square root of 441 is in between 20 to 30. And we know that square root of a number whose unit place is 1 is always a number whose unit place is either 1 or 9. Therefore, there is a possibility is you are getting only these 2 numbers in between 20 and 30. अब आपको क्या करना है? 29 या 21 का स्क्वायर लेना है. तो मैं आपको सिखाता हूं 21 का आप स्क्वायर इंस्टेंटली कैसा लेंगे. 2 इज अ 10th प्लेस, टेक इट्स स्क्वायर. 2 डिजिट नंबर है तो 2 0 दीजिए, 1 0 यहां दीजिए. ये दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन कीजिए और डबल कीजिए. 2 into 1 2 एंड डबल इज 4. एंड लास्ट डिजिट जो है उसका भी स्क्वायर कीजिए. तो ये 1 का स्क्वायर 1. अब इन सबको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 441, and your number is also 441. Therefore 21 is the square root of 441. So square root of 441 is 21, and therefore 441 is a perfect square number. Perfect number. What should be happen
when the number having unit place 4. So first criteria for 4 at the unit place is last two digits must be divisible by 4. Must be divisible by 4. Divisible by 4. अगर ये नहीं हुआ तो इसी स्टेप पे आपका नंबर रिजेक्ट हो जाएगा. सेकंड कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो आप डिजिटल रूट पे जाएंगे और डिजिटल रूट या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9 होना चाहिए. और तीसरा है उसका प्लेस, कि वो अगर डिजिटल रूट को भी सेटिस्फाई करता है तो यू हैव टू फाइंड द प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट. So let us see one example. I am giving you number that is 734. इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो आपको पहली कंडीशन लेना होगा, that is last two digits. इसको आपको 4 से डिवाइड करके देखना होगा. 34 is not divisible by 4, तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो जाएगा. सेकंड नंबर लेते हैं हम 724. तो 724 के लास्ट दो डिजिट 24 और वो डिविजिबल बाय 4 है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. अब इसका लेना है डिजिटल रूट. डिजिटल रूट आता है इसका 7 + 2 9, 9 + 4 13. अगेन डिजिटल रूट और ये आएगा 4. तो आपको डिजिटल रूट 1 4 7 9 में से कोई एक आना चाहिए था, ये 4 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई. अब इसका प्लेस ढूंढना है. प्लेस ढूंढने के लिए तरीका है 724, ये नंबर लिखिए, लास्ट टू डिजिट्स को ड्रॉप करके 0 और ये जो डिजिट बचा है उसका स्क्वायर रूट. बट वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो एक माइनस कीजिए तो 6 आएगा. 6 का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है. अगेन 1 माइनस, तो 5 का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है. अगेन 1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट आता है 2. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसका स्क्वायर रूट इज इन बिटवीन 20 एंड 30. तो अब 20 और 30 में ये लास्ट डिजिट 4 है, तो यही दो ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 या 8 रहता है उसी के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 आता है. सो दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज. नाउ वी आर चेकिंग द स्क्वायर ऑफ 22 इज वेदर 724 और नॉट. 10th डिजिट नंबर 4, उसका स्क्वायर 2 डिजिट देंगे आप, एक डिजिट यहां लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 एंड डबल दैट इज 8 एंड द यूनिट प्लेस का स्क्वायर दैट इज 4. एड देम, ये हो जाएगा 4 8 4. ये नंबर तो वो नहीं है, तो अब हमें चेक करना होगा 28 का स्क्वायर. आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं कि your square root is in between 20 to 30. That is already we have observed. Add them, so we'll get 50. Now your possible square roots are 22 and 28. Take the difference. Difference is 6. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 300. ये 300 आप अगर यहां ऐड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर 28 के अप्रोक्सीमेट स्क्वायर के साथ मैच होगा. मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 28 का स्क्वायर 784 के आसपास आएगा. मे बी इक्वल भी आ सकता है, बट आ सकता है. ये 724 है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये 784 इज नियरर टू 724. तो चेक करके देखते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट लीजिए, फिर एक डिजिट यहां दीजिए. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 16 और उसका डबल दैट इज 32, और 8 का स्क्वायर आता है 64. इनको आपको ऐड करना है, दैट इज 4, दिस इज 8 एंड देखिए ये मैच हो गया बराबर. तो आपका जो नंबर था वो 724 था. आपके जो दो प्लेसेस थे या तो 22 या तो 28, इन दोनों में से ही किसी का ये स्क्वायर होना चाहिए था. बट 22 का स्क्वायर कुछ अलग आता है 484 एंड 28 का भी कुछ अलग आता है. तो ये दोनों भी स्क्वायर इससे मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि 724
is not a perfect square. It is not perfect square. तो हमेशा इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है और आखिरी कंडीशन आपको कंफर्मेशन देगी कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं, और अगर है तो आखिरी कंडीशन आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के देगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 का। तो 4 का एक एग्जाम्पल जैसे कि 5184। 5184 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? यूनिट प्लेस पे 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो डिवीजन 4 से होता है, तो नंबर 1 कंडीशन ओके। अब डिजिटल रूट लेंगे 5 + 1 + 8 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6 6 + 8 14 14 + 4 18। 2 डिजिट नंबर आया, फिर इसका डिजिटल रूट लेंगे एंड इट इज व्हाट 9। तो हमें तो डिजिटल रूट 1 4 7 9 इसमें से एक चाहिए होता है, ये 9 आ गया, मतलब सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो ओके। अब इसका हम प्लेस वैल्यू ढूंढेंगे। 5184 आखिरी के 2 डिजिट रिमूव करके 0 लिखिए, बचे हुए डिजिट का रूट लीजिए। 51 का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, तो एक माइनस कीजिए, 50 आएगा, उसका भी रूट पॉसिबल नहीं है। 50 में से और एक माइनस कीजिए, 49 आएगा, उसका रूट आएगा 70। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट जो भी रहेगा वो इन बिटवीन 70 एंड 80 रहेगा। यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसका स्क्वायर रूट जो भी रहेगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। आपके नंबर 70 और 80 के बीच में है, तो या तो वो नंबर ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। नाउ आई एम चेकिंग व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 72। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 0 दीजिए, एक 0 यहां लिखिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14, उसका डबल 28 यहां लिखिए, और यूनिट प्लेस का स्क्वायर यहां लिखिए और इसको ऐड कीजिए। तो इट इज 4, इट इज 8, 9 2 11, यहाँ पे 5184 इज द स्क्वायर ऑफ 72। आपका नंबर भी वही था, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। अगर ये 72 का स्क्वायर इससे मैच नहीं होता तो आप 78 का स्क्वायर लेते, अगर वो भी मैच नहीं होता तो ये नंबर जो भी नंबर होता वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 364। तो यहां पर यूनिट प्लेस पे 4 है और आखिर के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होता है, तो कंडीशन 1 ओके। नाउ इसका डिजिटल रूट्स लेंगे, 6 + 4 और ये आता है 13, और इसका जो डिजिटल रूट आता है व्हाट इज दैट इज 4। 4 आना भी ओके है, तो सेकंड कंडीशन भी ओके। अब आखिरी कंडीशन दैट इज द प्लेस। सो 364 के आखिर के 2 डिजिट रिमूव करके हम 0 लिखते हैं और इसका रूट लेते हैं। 3 का रूट पॉसिबल नहीं है, तो 1 से माइनस करना शुरू कीजिए जब तक आपको कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिलता। 3 - 1 2 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। 2 - 1 1, तो 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 364 का स्क्वायर रूट इज इन बिटवीन 10 एंड 20। तो यहां यूनिट प्लेस पे 4 है, तो या तो ये नंबर आएगा या तो ये नंबर आएगा। 12 का स्क्वायर ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज 144, तो इसलिए वी हैव टू चेक ओनली व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18। सो 10th प्लेस पे 1 है, उसका स्क्वायर 1, 2 डिजिट, एक डिजिट दीजिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड डबल दैट इज 16, और 8 का 64, इसको ऐड कीजिए, 4 6 6 12 और ये हो जाएगा 324। तो ये 324 और 144 ही स्क्वायर्स है। आपको नंबर दिया था 364, इसकी कोई जगह नहीं है 10 to 20 में, दैट्स व्हाई 364 is not perfect square number. Okay, now let us see what happened when the number is having unit place as a 5. तो 5 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट टेस्ट है कि 10th प्लेस पे नंबर 2 ही आना चाहिए। 10th प्लेस इज ऑलवेज 2। 10th प्लेस पे अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर है
तो आप इंस्टेंटली उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया तो अपना डिजिटल रूट का होता है 1479, ये आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं आया तो आप उसको रिजेक्ट करोगे। और तीसरा है प्लेस का, जिसको आप स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए यूज करते हो। तो अब हम यूज करेंगे कुछ नंबर्स, जैसे कि 355 यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन 10th प्लेस पे 2 चाहिए था। 2 यहां 2 नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लेते हैं 825, तो यहां पर 5 है, तो यूनिट प्लेस पे 2 चाहिए था, तो इट्स ओके, तो कंडीशन 1 फुलफिल हो गई। अब हम इसका डिजिटल रूट लेते हैं 8 + 2 + 5 एंड दैट इज 15, और 15 का अगेन डिजिटल रूट आता है 6। हमें डिजिटल रूट चाहिए था या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9, लेकिन इसका डिजिटल रूट 6 आ गया, इसलिए सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम लेते हैं 7225, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, 10th प्लेस पे 2 है, फर्स्ट कंडीशन ओके। डिजिटल रूट लेते हैं। डिजिटल रूट्स आर 7 + 2 + 2 + 5, एड देम 9 + 9 + 2 11, 11 + 5 16। अगेन 2 डिजिट नंबर आया, तो आपको अगेन इसका डिजिटल रूट लेना होगा 7। आपको 7 चलेगा क्योंकि वो टेस्ट में आता है, तो सेकंड कंडीशन डिजिटल रूट्स का यहां फुलफिल हो गया। अब इसका प्लेस ढूंढना है, तो इस नंबर को आप लीजिए, आखिर के 2 डिजिट को रिमूव कीजिए, उसकी जगह 0, और ये 72 का स्क्वायर रूट आप यहां लिखेंगे। बट 72 का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, तो 1 से माइनस करते हुए आपको जाना है। तो 71, 70, 69, तो ये 64 तक जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट आता है 80, तो आपका प्लेस होगा इसके रूट का या तो 80 to 90 के बीच में। और 80 to 90 के बीच में एक नंबर ही होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, बिकॉज जिस नंबर का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे भी 5 ही होना चाहिए। तो इसलिए 85 इज द प्रोबेबल आंसर। अब 85 का स्क्वायर हम करके देखते हैं, उतना अगर आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 8 का स्क्वायर आता है 64, 2 0 लीजिए, 1 0 यहां दीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन आता है 40, उसका डबल हो जाएगा 80। 5 का स्क्वायर आता है 25, वो यहां लिखेंगे, एड देम 5 2 12 एंड दिस इज 7225, ये मैच हो गया। तो 7225 is a perfect square number and the square root of 7225 is nothing but 85. Okay. और एक एग्जांपल लेते हैं 2025। यूनिट प्लेस पे 5 है, 10th प्लेस पे 2 है, फर्स्ट कंडीशन ओके। 2 + 0 + 2 + 5, डिजिटल रूट मैं काउंट कर रहा हूं, दैट इज 2 + 2 4 + दिस इज 9, 9 आया तो ये भी ओके। तो अब आखिरी कंडीशन दैट इज द प्लेस, तो आखिर के 2 डिजिट के जगह 0 लिखिए और ये 20 का रूट निकालिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो 1 माइनस कीजिए, 19 18 17 16, 16 का रूट आता है 4, तो आपको रेंज मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 40 to 50 के बीच में, and that is nothing but 45 is the probable answer. So confirm 45 का स्क्वायर कितना आता है। 4 का स्क्वायर 16, 2 0 1 0 देना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20, उसका डबल यहां लिखना है और आखिर का स्क्वायर इधर करना है, तो आपको मिलेगा 5 2, it is 0, it is 2. Another method is also there, रूटीन मेथड, कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर आप इंस्टेंटली निकाल सकते हो। और 5 का स्क्वायर लिखिए 25, और ये जो 10th प्लेस का नंबर होता है उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसके नेक्स्ट नंबर के साथ, मतलब 4 का नेक्स्ट नंबर है 5, 4 5 are 20, तो ये इसका स्क्वायर रहेगा। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 45 एंड देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्या होगा जब आपके नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो 6 की
क्राइटेरिया की फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपके नंबर की यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका 10th प्लेस क्या होना चाहिए। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36। तो क्या आया 10th प्लेस पे? 3। और कौन रहता है जो 6 देता है? दैट इज आई थिंक 6 के बाद 6 का स्क्वायर 36, राइट। तो यूनिट प्लेस जो है 10th प्लेस जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा क्राइटेरिया है डिजिटल रूट का। डिजिटल रूट या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9, इनमें से एक होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है प्लेस का, जो आप स्क्वायर रूट को कंफर्म करने के लिए करते हो। फर्स्ट एग्जांपल इज 846। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 10th प्लेस पे एनी ऑड नंबर चाहिए था, ये ऑड नहीं है तो ये यहां रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड इज 1856। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है और 10th प्लेस पे ऑड है, तो कंडीशन 1 ओके हो गया। कंडीशन 2 पे जाएंगे हम। 1 + 8 + 5 + 6, तो ये 9 + 5 14 और ये 20 का डिजिटल रूट आता है 2। हमें डिजिटल रूट चाहिए होता है या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9, ये 2 आ गया। तो सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला देखते हैं 3856। तो यहां पे 6 है, यहां पे ऑड नंबर है, तो इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 3 + 8 + 5 + 6 और इसका आएगा 11 11 16 22 का डिजिटल रूट आता है 4। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं। आखिर के 2 डिजिट ड्रॉप 0। 38 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 1 - 37 का भी नहीं है, 1 - 36 का 6 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्क्वायर रूट इस नंबर का 60 और 70 के दरमियान रहेगा। नाउ जिसके यूनिट प्लेस पे 6 रहता है उसके स्क्वायर रूट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, इसलिए 64 और 66 ये 2 पॉसिबिलिटीज ही बन जाते हैं। तो अब हम 64 का स्क्वायर लेते हैं। 64 का स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 0, 1 0 यहां देना है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 और उसका डबल 28। फिर यहां 4 का स्क्वायर लिखना है 16, इनको ऐड करना है 6 9 8 3, तो आपको मिला 3896 और आपका नंबर था 3856। ये छोटा है, इसका मतलब 3856 ये दोनों का भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब 3856 is not a perfect square number. ओके, 256 या 256 का चेक करते हैं। 256 में यूनिट प्लेस पे 6 है, यहां पर ऑड है और इसका डिजिटल रूट आता है 256, मतलब 7 और 13 का डिजिटल रूट 4। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो 256 के आखिर के 2 डिजिट को ड्रॉप 0 लिखेंगे, 2 का रूट निकलता नहीं है, एक -1 का रूट 1। तो इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट अगर इसका निकलता होगा तो वो 10 और 20 के बीच में रहेगा, मतलब या तो 14 रहेगा या तो 16 रहेगा। व्हाट इज द 14 का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर 1, 2 0, 1 0 यहां देना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डबल और आखिर का स्क्वायर, और ये ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 196। अब 196 तो ये नंबर है नहीं, तो आपको 16 का भी स्क्वायर चेक करना होगा। 16 का स्क्वायर चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 0, यहां एक 0 देना है, मल्टीप्लीकेशन एंड डबल दैट इज 12 एंड 6 का स्क्वायर 36 ऐड, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, ये मैच हो गया। इसलिए 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स रूट इज 16। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज व्हेन 9 इज एट द यूनिट प्लेस। तो उसके लिए 9 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? 81। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए?
सॉरी 9 का नहीं, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उसके 10th प्लेस पे 4 है। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई आपकी 10th प्लेस। जब आपका यूनिट प्लेस 9 रहेगा तो उसका 10th प्लेस हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया हमारा डिजिटल रूट का है जो 1479 इसमें से आना चाहिए। और तीसरा है प्लेस, आपको सीक्वेंस में आना है। ये अगर रिजेक्ट हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपको ये चेक करना है, ये रिजेक्ट हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये भी सेटिस्फाई हुआ तो आपको प्लेस पे आना है। तो यहां कंफर्म हो जाएगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब एक नंबर लेते हैं 579, इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है लेकिन 10th प्लेस पे इवन नंबर चाहिए था, यहां पर ये इवन नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाएगा कि ये नहीं है। 969 सेकंड नंबर, इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है तो यहां पर इवन नंबर चाहिए था तो इवन है, मतलब कंडीशन 1 सेटिस्फाई। अब आप कहां जाओगे, कंडीशन 2 पे। 9 प्लस 6 प्लस 9 इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 9 इज 24 और इसका डिजिटल रूट आता है 6। हमें चाहिए था 1479, ये 6 आ गया तो डिजिटल रूट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब दूसरा नंबर लेते हैं 3249, इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस पे इवन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड के लिए आप इसको डिजिटल रूट निकालेंगे तो डिजिट्स को ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 एंड 9 18, ये 2 डिजिट नंबर आया तो इसका अगेन आप डिजिटल रूट निकालिए, वो आता है 9 और हमें चाहिए था 1479 में से कोई एक, और ये 9 आ गया तो सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई की। अब हम आते हैं आखिरी कंडीशन पे जो कंफर्म करेगी कि ये स्क्वायर है या नहीं है। आखिर के 2 डिजिट ड्रॉप करके 0 लिखिए, 32 का स्क्वायर रूट आप यहां लिखोगे, पर 32 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो उससे छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हो, and what is that, 25. 25 is the less number than the 32 whose square root we can take and that is 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्क्वायर रूट 50 to 60 के दरमियान ही रहेगा। जब यूनिट प्लेस पे 9 होता है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, इसलिए ये 2 पॉसिबिलिटीज ही इसकी हो सकती है। अगर आपका स्क्वायर ऑफ 53 इतना नहीं आता है, स्क्वायर ऑफ 57 भी इतना नहीं आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम निकालेंगे 53 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट देंगे, 1 डिजिट यहां, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 एंड डबल 30 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे 0, 8 एंड 2, 2809 इज अ स्क्वायर ऑफ 53 जो कि इसका है नहीं। तो अब हम निकालेंगे 57 का स्क्वायर रूट, सॉरी 57 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 0, 1 0 यहां देना है, मल्टीप्लीकेशन 35 डबल 70 और 7 का 49, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये 12 और ये 3, 3249 मैच हो गया। मतलब square root of 3249 is 57. It is integer and therefore 3249 is a perfect square number, and also we have found that its square root is 57. We'll see one more example. 5329 यूनिट प्लेस पे 9 है, 10th प्लेस पे इवन नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन ओके हो गई। अब इसके डिजिटल रूट्स लेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9, इसका आंसर आता है 8 प्लस 10 19, और 19 का अगेन डिजिटल रूट लेंगे, उसका आंसर आएगा 10, इसका फिर डिजिटल रूट 1, और हमें 1 चलेगा क्योंकि 1479 आना चाहिए था, 1 आ गया, इट्स ओके। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और है तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो लास्ट के 2 डिजिट ड्रॉप करके हम लिखते हैं 0 और 53 का स्क्वायर रूट यहां लिखेंगे, लेकिन 53 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो उसमें से 1 माइनस करते जाएंगे जब तक हमें परफेक्ट नंबर नहीं मिलता। तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो स्क्वायर रूट है इसका वो 70 और 80 के दरमियान रहेगा।
तो अब 9 यूनिट प्लेस पे रहेगा तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, इसलिए यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो 73 का हम स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 2 जीरो दीजिए, 1 जीरो दीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन 21, उसका डबल हो जाएगा 42 और 3 का स्क्वायर आएगा 9 और फिर इसका एडिशन कीजिए, ये 2 9 13 और ये हो जाएगा 5 5329। आपका नंबर भी वही था, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5329 इज इक्वल टू 73। Therefore, a number 5329 is a perfect number and whose square root is 73. So these are some methods I have explained here, and it will be very helpful to you to decide whether the given number is a perfect number or not, and also to decide what will be the square root of the given number if given number is a perfect number. So यहीं रुकते हैं। Thank you very much for watching, and इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।